and everyone present over here. This is Priyanka Damle, a faculty at Parul University. I'm feeling very glad here to share. I'm feeling very glad to introduce our today's expert, Mr. Vamshidhari Prabhu, at Parul University. He is serving in ISKCON more than last 14 years. He had started his graduation in BTech Electrical Engineer from NIT Bhopal in 2008. After graduation, he got selected in the campus placement in Reliance Infrastructure Limited. He served in Reliance Infrastructure Limited as an assistant manager position from 2008 to 2011. He joined as a full-time monk in the ISKCON in 2011. Then he joined as a full-time monk in ISKCON in 2011. Previously, he was involved in the youth outreach in NIT Bhopal, IIT Gwalior, SDSIT Indore, and many more like that. He was being appointed as a director in ISKCON Youth Forum Department in ISKCON Baroda. Currently, he is involved in preaching and overseeing the development of outreach activities in many youth clubs like various colleges, universities like MS University, Parul University, GEC Dahod, GEC Surat, and other colleges in Baroda. Surat, and many more districts. He is lifetime coach, spiritual mentor, and guide youths, children, household corporators, and people from every walk in our life. And today he is going to share with us an expert opinion on the principle of effective leadership. With that, I ask that you give your full attention to Prabhuji and help me to welcoming him to join us. Prabhuji, you can start now. Thank you so much for allowing me to be here to associate with the students and faculty of Parul University. Am I audible now, ma'am? Am I audible properly? Yes, sir, you are audible. Okay. So I will just present the screen, then we can start. Okay. So it's my great fortune that I got this opportunity to come in front of all of you, and this is a very important topic actually, principles of effective leadership, because in every walk of life people need leaders, and Bhagavad Gita says that yat yat acharati shrestha tat tat eve tado jana. Like whatever the leader sets the example, in whichever way the leader works, the followers follow. तो वैदिक शास्त्रों में भी इस प्रकार से बताया गया है कि समाज में एक अच्छे नेतृत्वकारी लीडर की कैसे आवश्यकता होती है। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इफेक्टिव लीडरशिप क्या कहलाती है और किन फाउंडेशंस पे बेस्ड होती है, कौन से यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स इसके ऊपर इफेक्टिव लीडरशिप बेस्ड रहती है, और कैसे उन प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करके एक प्रॉपर बोनाफाइड लीडर बन सकते हैं। So I hope all of you are seeing the screen, the PPT screen. तो सबसे पहले हम कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। तो जैसे एक आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। जस्ट एक स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति पानी के जहाज में समुद्र में बहुत बड़ा जहाज लेके जा रहा था। तो जहाज का जो मेन कैप्टन है, जो जहाज को सेल करने में मदद कर रहा था, उसने देखा कि रात का समय था और रात के समय में दूर से कुछ सिग्नल आ रहे थे, लाइट सिग्नल आ रहे थे। हम सभी को पता होगा कि रात के समय समुद्र में जो लाइट सिग्नल होते हैं उसके द्वारा पता चलता है कि कौन सा स्टेशन कहाँ पे स्थित है। तो और बाकी दोनों शिप हैं वो भी एक दूसरे से। यस सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आपका आवाज थोड़ा सा धीरे आ रहा है। जस्ट अ मिनट। ओके। अभी ठीक आ रहा है? आवाज ठीक है अभी? या इट्स फाइन नाउ। ओके।
तो उस प्रकार से एक समुद्र के अंदर एक्चुअली रात में किस प्रकार से लोग से जहाज के बीच में सिग्नल कैरी होता है, एक जहाज कुछ लाइट सिग्नल भेजता है और दूसरा जहाज लाइट सिग्नल से ही रिप्लाई करता है। तो उस जहाज के कैप्टन को लाइट के सिग्नल सामने से दिखाई दिए, तो उसने सोचा कि कोई दूसरा शिप उसको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो उस सिग्नल का मतलब था कि आप अपना शिप जो रास्ते से जा रहा है उस रास्ते से चेंज कर दीजिए। तो इस कैप्टन जो था, ये कैप्टन बहुत सीनियर था, उसको ये लगा कि कोई दूसरा शिप मुझसे कैसे बोल सकता है कि मैं अपने जहाज की दिशा को बदल दूं। तो उसने सिग्नल भेजा, उसने बोला नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना जहाज की दिशा बदल दीजिए। तो दूसरी तरफ से फिर से सिग्नल आया कि नहीं, मैं नहीं बदल सकता हूँ, आपको अपने जहाज की डायरेक्शन बदलनी होगी। तो फिर इस कैप्टन ने बोला, मैसेज भेजा कि मैं देखो एक कैप्टन हूँ, मैं बहुत सीनियर हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना डायरेक्शन बदलना होगा। तो वहां से दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि नहीं, मैं तो इतना सीनियर नहीं हूँ, मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, परंतु आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने बोला, उस व्यक्ति का जो मैसेज आया उस मैसेज में लिखा था, मैं एक्चुअली एक एक व्यक्ति हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ जो कि लाइट स्टेशन पे बैठा हूँ। समुद्र में लाइट स्टेशन होते हैं, बीच बीच में कहीं पे आयरलैंड होते हैं, तो वहाँ पे लाइट स्टेशन बनाए जाते हैं, लाइटनिंग पोल बनाए जाते हैं, जहाँ से जहाज को दिशा बताई जाती है। तो उसने बोला कि मैं चूंकि लाइटिंग स्टेशन पे हूँ, तो मैं अपनी दिशा नहीं बदल सकता हूँ, आपको अपने शिप की दिशा बदलनी होगी। तब इस कैप्टन को पता चला कि वास्तविकता क्या है। तब इसने अपने शिप की डायरेक्शन बदल के दूसरे डायरेक्शन से गया। तो इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि संसार में, यूनिवर्स में कुछ कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। अगर हम उसके आधार पे अपने जीवन को अलाइन करेंगे तो हम आसानी से लीड कर सकते हैं। और अगर हम सोचेंगे कि नहीं नहीं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल को हम चुनौती देंगे, तो फिर बहुत कठिन होता है। जैसे एक और उदाहरण है, सिंपल उदाहरण है कि अगर चारों तरफ बारिश हो रही है और आपको घर के बाहर जाना है, तो एक तो तरीका है कि आप छाता लगा के और गम बूट पहन के बाहर चले जाएं, तो आप भीगेंगे नहीं। और दूसरा तरीका है कि आप कोशिश करें कि कैसे बारिश को रोकेंगे। तो दूसरा Uh, तरीका बहुत कठिन है। यस, यू वांट टू स्पीक समथिंग मैम? yes sir, sorry to interrupt you again, but थोड़ा सा loud हो सकता है आवाज, बिकॉज फेसबुक पे सुनाई नहीं दे रहा है। गूगल मीट पे सुनाई दे रहा है? Yes, it is audible on a maid, but दे रहा है क्या? yes, but थोड़ा सा सर loudly हो सकता है, माइक ऐसे थोड़ा माउथ के पास रखे तो। ओके, आई होप। ओके, हाँ हाँ, ओके, माइक, ओके, ठीक है। अभी आई होप बेटर होगा ये, अभी शायद बेटर होगा पहले से। तो इस तरह से अगर हमें, जैसे मैं बता रहा था कि अगर बारिश हो रहा है और हमें कहीं पे जाना है, तो एक तरीका तो है कि हम छाता लगा के गम बूट पहन के चले, कोशिश करेंगे कि बारिश को कैसे रोकेंगे। तो दूसरा तरीका बहुत कठिन है। इसी तरह से हमें अपने अंदर की वस्तुओं को बदलना बहुत कठिन है। तो लीडरशिप, हम स्वयं अपना बिहेवियर सकते हैं, और वो कि बाहर के लोगों ने हमारे साथ ये किया, बाहर में हमारे साथ लोगों को बदलना, बाहर के संसार को बदलना बहुत कठिन है। परंतु व्यक्ति अगर अपने अंदर बदलता है, तब वो उतने प्रोपोर्शन में बाहर भी बदल सकता है। तो दूसरा पॉइंट जो लिखा है, चेंज द वर्ल्ड विद इन इनर मैकेनिज्म। अपने अंदर हमें बिहेवियर को, वैल्यूज को और सिस्टम को बदलना होगा। और जितना हम अपने अंदर परिवर्तन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, उतना बाहर के लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट आता है कि कई बार लोग बहुत सारी कंप्लेन करते हैं, जैसे गांव में कुछ चौपाल होती हैं। चौपाल इन द सेंस जहां पे लोग बैठ के गप्पे करते हैं। तो उस चौपाल में लोग बात करते हैं कि अमेरिका में ऐसा हुआ, ऐसी बातें करके टाइम वेस्ट करते हैं। तो कुछ चीजें होती हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, कुछ चीजें होती हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। सामान्यतया
ज्यादातर लोग ऐसी चीजों के ऊपर कार्य करते हैं जिनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता है। केवल वो ब्लेम करते हैं, मौन करते हैं, येल करते हैं। ब्लेमिंग, मॉर्निंग और येलिंग, बीएमडब्ल्यू बोला जाता है उसको। ज्यादातर लोग अपना 90 न करके जिसको परिवर्तन नहीं कर सकते और जिसको ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो समाज में जो आइडियल लीडर्स होते हैं उनका ये जरूरी है कि सबसे पहले वो अपने ऊपर कार्य करें। इसीलिए इसी पीपीटी में एक और पॉइंट आता है, प्राइवेट विक्ट्री देन पब्लिक ग्लोरी। बुद्धि को नियंत्रित करना होगा, तब वो व्यक्ति पूरे संसार को भी नियंत्रित नहीं होगा, क्योंकि संसार में आइडियल लीडरशिप सिद्धांत सिखाते हैं कि व्यक्ति केवल लोगों को इंस्पायर कर सकता है। अगर हम किसी को गुस्सा दिखा के या अपनी अथॉरिटी से या फोर्स के द्वारा अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो लोग कंट्रोल नहीं होते हैं। जैसे कोई बोले कि नहीं मैं तो प्रिंसिपल हूं, मेरी बात आपको मान नहीं होगा, तो व्यक्ति मानेगा। आपको उसको उसका हार्ट कैप्चर करना है तो आपको उसको इंस्पायर करना होगा। तो इंस्पायर करने के लिए व्यक्ति को अपने खुद के ऊपर कार्य करना पड़ता है, खुद के बिहेवियर पे कार्य करना होता है, खुद के लाइफ स्टाइल पे कार्य करना होता है, खुद की वाणी पे, एक्टिविटीज पे कार्य करना होता है। किस प्रकार से वो बोलता है, किस प्रकार से लोगों से डील करता है। जो उस पर ज्यादा कार्य करता है वो लीडरशिप में आगे निकलता है, उसको एक्स्ट्रा एज मिलता है। क्योंकि सामान्यतः संसार में लोग कार्य करते हैं क्योंकि वो लीडर्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं। हम भी अपनी फैमिली में भी हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता का दिया हुआ कार्य करते हैं, क्योंकि माता पिता से वो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, कृतज्ञता फील करते हैं। अगर कृतज्ञता फील नहीं होगी तो इस संसार में कोई व्यक्ति दूसरे की बात नहीं सुनता है। जैसे अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस ने 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन करीब 30 साल तक उनका सिस्टम अच्छे से चला। 1975 के बाद उनको लगा कि उनकी कंपनीज उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने एनालिसिस किया तो पता चला कि उनकी कंपनी में क्या प्रॉब्लम है कि कंपनीज में डिसीजन केवल अपर सिस्टम से लोअर सिस्टम की तरफ आते हैं। ऊपर के लोग बोलते हैं और नीचे के लोग केवल सुन के काम करते हैं। इस कारण से नीचे के लोगों का दिमाग का उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सिस्टम बदला, लोगों को इंस्पायर किया कि वो सिस्टम। दूसरी प्रॉब्लम आई कि जो लोग थे, बहुत सारे लोगों के दिमाग जब मिलते हैं तो कोई काम नहीं होता है। हम जानते हैं जब बहुत सारे लोग कोई चीज में अपना दिमाग लगाएं तो फिर काम आगे नहीं बढ़ता है। तो वो एक दूसरी प्रॉब्लम आई। उसके बाद उन्होंने देखा जापान में कंपनीज बहुत अच्छे से कार्य करती हैं, तो बहुत सारे लोगों ने जापान में इस प्रकार से भेजा अपने एक्सपर्ट्स को देखने के लिए कि जापान की कंपनीज किस प्रकार से कार्य करती हैं। और वहां पे उन्होंने ये सिस्टम देखा कि जापान में एक्चुअली कंपनी जैसा एटमॉस्फेयर नहीं होता है, फैमिली के जैसा एटमॉस्फेयर होता है। सब लोगों का एक दूसरे से पर्सनल संबंध बहुत अच्छा होता है। उसके बाद सुनता है, वो कार्यों को ज्यादा एफिशिएंटली करता है। तो इसीलिए उससे समझ में आता है कि आप ऑर्डर दे के व्यक्ति के इस स्किल को खरीद सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं खरीद सकते हैं। एंड दैट इज द वे ऑफ आइडियल लीडरशिप, but to behave in such a way that your behavior will create the inspiration in the heart of junior or the follower, and because of that inspiration that person will be ready to follow us and be in our relationship for the whole life. That is one of the crux of ideal relationship. इवन भारत में भी जब लोगों ने आके देखा था, भारत के वैदिक सिस्टम में जब बाहर के लोगों ने आके, कोई पैसा नहीं देता है, परंतु शिष्य गुरु की बहुत इज्जत करता है, उसके लिए सारे काम भी करता है। तो विदेशों की जो कंपनियां थी उनको यहाँ पे ये गुरु पैसा भी नहीं देता है, बच्चे को डांटता भी है, बच्चे उसका काम भी करते हैं, कैसे ऐसा चलता है। तो उन्होंने भी यही सिद्धांत देखा कि वो आध्यात्मिक गुरु इतना ज्यादा उसका बिहेवियर उसके, सो दैट्स द वे ऑफ आइडियल लीडरशिप। अगर लीडर के पास ये क्वालिटीज नहीं है, if leader doesn't have these qualities, then some people will commit and some people will oppose. क्योंकि कमिटमेंट और इंस्पिरेशन ये किसी को हम मार के नहीं खरीद सकते हैं,
किसी को फोर्स से के नहीं खरीद सकते हैं। अगर हमारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे, लोग हमें कमिट नहीं करेंगे। कुछ लोग अपोज करेंगे, कुछ लोग कमिट करेंगे, क्योंकि हर इस संसार में हर व्यक्ति अच्छे गुणों को देखना चाहता है। तो इसलिए आइडिया लीडर की बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले अपने ऊपर कार्य करे, दूसरे पे कार्य करना कम करके सबसे पहले अपने ऊपर कार्य करे, क्योंकि अपना ऊपर जितना कार्य करेगा उतना वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओके, नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड। These are some of the principles of ideal leadership. पहला प्रिंसिपल है, only the good follower can become the good leader. ऐसा व्यक्ति जो कि अपने सीनियर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, केवल वो उसी व्यक्ति को अधिकार मिलता है कि आगे जाके वो एक अच्छा नेता या अच्छा लीडर बन सकता है। क्योंकि लीडरशिप हमेशा कनेक्शन पे आधारित होती है। हम अगर अपने जूनियर से बोलते हैं कि तुम्हें मेरे लिए अकाउंटेबल होना होगा, मैं जो बोलूंगा वो बात मानना होगा, तो जूनियर के मन में प्रश्न आएगा कि तो किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है, हम तो पूरे इंडिपेंडेंट हैं। तब फिर वो बात नहीं बनती है और वो जूनियर फिर बात नहीं समझता है, क्योंकि दिस इज द सिंपल थिंग। अगर हम किसी से अपने लिए सरेंडर मांग रहे हैं तो हमें भी किसी के लिए सरेंडर होना होगा। तो ओनली द गुड स्टूडेंट कैन बिकम द गुड टीचर, ओनली द गुड फॉलोअर कैन बिकम द गुड लीडर। क्योंकि इस संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, भगवान के अलावा कोई स्वतंत्र नहीं है, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हम अपने सीनियर्स के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं कि हमारे जूनियर्स हमारे लिए अच्छे फॉलोअर्स बनेंगे। और एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा इसी तरह से कार्य करता है। अगर हम अपने सीनियर्स को परेशान करते हैं तो कोई ना कोई जूनियर आएगा जो हमसे पूरा वसूल कर लेगा, पूरा जो थोक भी लेगा और ब्याज भी वसूल कर लेगा। तो आप अपने सीनियर्स को परेशान करके देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके पास कोई जूनियर आएगा जो आपका पूरा जितना भी कर देगा। So only when we are surrendered to our seniors, then only we have the right to ask surrender from juniors. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि जूनियर्स को मेरी सारी बात मानना चाहिए परंतु मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तो ये कोई नहीं जो आपको गाइड कर सकता है या जो आपको डांट सकता है, और आप सोच रहे हैं कि मैं ही सभी को डांटूंगा, तो वो चीज कभी कार्य नहीं करती। ऐसी चीजों से हो सकता है व्यक्ति को कुछ समय तक सक्सेस मिले, परंतु आगे जाके व्यक्ति फेल हो जाता है। रिनंसिएशन ऑफ प्राइड एंड रिनंसिएशन ऑफ फॉल्स ईगो। जैसे जैसे हम समाज में ऊंची स्थिति में जाते हैं तो बहुत आसान है ये सोचना कि हम परफेक्ट को सुनना चाहिए, जहां पे मैं खड़ा हो जाऊं वहां से लाइन चालू हो जानी चाहिए, पर ये सब घमंड में आता है। जब तक इस घमंड को हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लॉन्ग एंड्योरिंग आइडियल लीडर नहीं बन सकते। कुछ लोगों से मैं मिला भी जिनके पास इतना घमंड रहता है, वो ओपनली लोगों से बोलते हैं, परंतु अपनी प्रशंसा करने से, अपने घमंड को बताने से, ये बताने से कि मैं कितना एक्सपर्ट हूं, कभी भी हम दूसरे को इंस्पायर नहीं कर पाते हैं। केवल दूसरे से ईर्ष्या हमें मिलती है। इसके बदले जो व्यक्ति वास्तविकता में आइडियल लीडर होता है वो केवल अपने गुणगान नहीं करता, वो दूसरे में भी अच्छा देखता है, और दूसरे में अच्छा देख के उसको भी प्रशंसा और घमंड, ये दो चीजों का त्याग करना एक लीडर के लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरा, रिनंसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंस शुड बी अवर। सभी लोग मेरे कंट्रोल में आएंगे और मैं किसी के कंट्रोल में नहीं रहूंगा। इस इच्छा को त्याग करना एक आइडियल लीडर का लक्षण है। जितना हम अपने जूनियर्स को लीडर के लिए विनम्र रहना और सबमिसिव रहना अपने सुपीरियर्स के लिए हमेशा आवश्यक है। जैसे पुत्र पिता के लिए सरेंडर्ड होता है, पिता दादाजी सरेंडर्ड रहेंगे, परंतु हमें भी अपने सीनियर्स के लिए कि ये व्यक्ति जो है ये भी जेन्युइन व्यक्ति हैं, क्योंकि ये भी अपने सीनियर्स की बहुत इज्जत करते हैं। अगर वो देखेंगे कि ये व्यक्ति तो अपने सीनियर से हमेशा लड़ते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, तो वो चीज वो भी सीखेंगे और फिर
वो भी उस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करेंगे। देन अभी आता है कि किस प्रकार से एक आइडियल लीडर जो है वो अच्छे से टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, अच्छे से टीम को कर सकते हैं। क्या क्या सिद्धांत उनको होना चाहिए? टू लिसन, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ज्यादातर लोग आप देखेंगे हमें केवल एक मुंह दिया गया है और दो कान दिए गए हैं। तो बाई नेचर इस प्रकार से बताया गया है कि हमें कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने के लिए ज्यादा वस्तुएं दी गई हैं, दो कान दिए गए हैं, तो ज्यादा सुनना चाहिए, कम बोलना चाहिए। परंतु सामान्यतः संसार में लोग तो सभी पावर टू लिसन, उसको सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास अपनी समस्या लेने के लिए आया, लेके आया, उसको किसी के साथ समस्या है, तो जिस व्यक्ति के अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, वो आधी बात सुनता है, आधी बात एज्यूम करता है, फिर बोलता है नहीं नहीं मैं समझ गया तुम्हारी क्या समस्या है, जाओ अभी ये होगा तो सही हो जाएगा। तो वो व्यक्ति भी निराश हो जाता है कि मैं इतने आशा लेके गया उनके पास, उन्होंने मेरी बात सुनी। पावर टू लिसन। और विशेष रूप से स्पिरिचुअल लीडरशिप में हम देखते हैं कि वैदिक स्क्रिप्चर्स जो बताते हैं, एक्चुअली वैदिक शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण है आइडियल लीडर्स के। जैसे परीक्षित महाराज हैं, युधिष्ठिर हैं, भगवान रामचंद्र हैं, अर्जुन है, पृथु महाराज हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें सिखाते हैं कि आइडियल लीडर्स कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसे होता है। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी जो मैंने ये पीपीटी बनाया है, जो पीपीटी मटेरियल से नहीं लिया है, ये पीपीटी में मैंने एग्जैक्टली श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो है बनाया है। तो पहला प्रिंसिपल है पावर टू लिसन, दूसरा प्रिंसिपल है पेशेंस। लीडर को धैर्य रखना चाहिए। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब होता है कि हमारे सामने कोई, तो वो रिएक्टिव कहलाता है। रिएक्टिव होने से कई बार हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो पेशेंस के आधार पे दो लीडर्स का डिस्क्रिप्शन बताते हैं। और पहला है इमेच्योर लीडर। इमेच्योर लीडर के लिए मैंने एक एक्रोनम बनाया है। एक्रोनम है RAJAS, रजस। जो इमेच्योर लीडर हैं वो रिएक्टिव होते हैं। कोई सिचुएशन को ज्यादा सोचते नहीं, तुरंत तो उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं, रिएक्ट करते हैं। और उसके कारण कई बार मिस्टेक भी करते हैं। तो R फॉर रिएक्ट, A फॉर एज्यूम। एज्यूम मतलब ज्यादा फैक्ट को नहीं सुनना और ये सोचना कि मुझे तो पता है। कोई कोई चीज एज्यूम करके आगे बढ़ते हैं, बाद में पता चलता है कि जो हमने सोचा था वो गलत था। एजम्पशन के लोगों को जज नहीं करना चाहिए, तुरंत देख के उनको हम जज करें कि जैसे कोई हमारे सामने आए। क्योंकि लीडरशिप में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास लोग कॉन्फ्लिक्ट लेके आएंगे, प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, और हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व, अगर हम किसी को देंगे और गलत डिसीजन लेंगे, तो इसलिए जजमेंट बहुत खराब है। इमेच्योर लीडर की पहचान होती है कि वो जज करता है, रिएक्ट करता है, एज्यूम करता है। और चौथा क्वालिटी एंग्री, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। बस श्रीमद् भगवत गीता बताता है कि क्रोधात भवति ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायतन होता है। और क्रोध जब व्यक्ति के पास आता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। क्रोधात भवति सम्मोह। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो वो सम्मोहित हो जाता है, वो ज्यादा चीजें सोच नहीं पाता है। हमने भी देखा है ये चीज।
जब कभी हम गुस्से में होते हैं तो हमारा लॉजिक गायब हो जाता है, हम बहुत जल्द, इमेच्योर लीडर जो है वो एंगर पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। और पांचवा है स्नैप डिसीजन। स्नैप डिसीजन मतलब फटाफट काम करना। फटाफट काम करना अच्छा है, परंतु फटाफट बिना सोच में। लीडरशिप के, मैच्योर लीडरशिप के तीन गुण हैं। DAS, डी का मतलब होता है अटेंटिव, एस का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। ये क्या क्वालिटीज हैं? ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं। पहली क्वालिटी डिटैच, डी फॉर डिटैचमेंट। डिटैच का मतलब होता है कि हमें समझना चाहिए, हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करे और वो व्यक्ति उस प्रकार से कार्य नहीं करेगा। खराब होता है कि ये व्यक्ति क्यों ऐसा नहीं कर रहा है। तो अगर हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, उसके बाद हम डिटैच रह सकते हैं। भगवत गीता में उसको बोलते हैं कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई एग्जामिनेशन आने वाला है, तो एग्जामिनेशन के पहले उसको बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए एग्जाम के लिए। एक ही अगर और क्या होगा, अलग अलग चीजें नहीं सोचना चाहिए। उसके हाथ से चली गई तो उसके हाथ में कुछ नहीं है। तो आंसर शीट जब तक उसके हाथ में है तब तक वो बहुत अच्छे से कार्य कर द रेस्ट। जब कोई कार्य आपके हाथ में है तो उसको इतने अच्छे से करिए, हमारे हाथ से चला जाए तो रिजल्ट के प्रति डिटैच रहना चाहिए। अगर हम रिजल्ट के लिए बहुत अटैच रहेंगे तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट भी होंगे। तो मैच्योर लीडर जो है वो कार्य अच्छे से करता है, उसके बाद वो डिटैच रहता है, क्योंकि उसको पता है मैंने अपनी तरफ से सबसे अच्छा किया। इसके बाद अगर वो चीज नहीं होती है तो फिर उसको हम ज्यादा दुख नहीं मना सकते। एटलीस्ट मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। इसके बाद दूसरा लक्षण है अटेंटिव। अटेंटिव टू द डिटेल्स। अटेंशन का मतलब होता है कि हम व्यक्ति को कितना प्रेम करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं। जैसे हम अपनी फैमिली में हर व्यक्ति को, फैमिली में जो भी लोग हैं उन सब का जन्मदिन याद रखते हैं, उनको क्या क्या चीज अच्छी लगती है भोजन में ये याद रखते हैं, उसकी क्या हॉबी है ये याद रखते हैं। तो जिसको हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम सारी चीजों को याद रखते हैं, अटेंटिव होते हैं। परंतु बार मिलने के लिए आया, जब वो 11वीं बार आया तब भी हम उससे नाम पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। तो उस व्यक्ति को कैसा लगेगा कि ये व्यक्ति तो कैसे हैं, ये इनको मेरा नाम भी याद नहीं है। अपने आप उस व्यक्ति का विश्वास हमारे ऊपर से कम हो जाएगा, क्योंकि हमने कभी उसको प्रेम नहीं दिया। अगर प्रेम दिया होता तो कम से कम नाम तो याद रख सकते थे। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए, लीडर को बहुत अटेंटिव रहना चाहिए डिटेल्स के लिए। जो भी कार्य मिल रहा है, जिस व्यक्ति से वो मिल रहे हैं, उसके लिए उनको अटेंटिव रहना चाहिए। लोगों का नाम याद रखना, उनको क्या अच्छा लगता है, उनकी केयर कैसे की जाती है, ये सब कुछ याद रखना लीडर के लिए बहुत नहीं। हम लीडरशिप पोजीशन में ऊपर जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं, लोग बहुत सारा विश्वास करते हैं, देते हैं। तो लीडर के लिए बहुत आसान है ये सोचना कि अभी मैं फैसिलिटी को एंजॉय करूंगा। परंतु अगर वो केवल फैसिलिटी को एंजॉय करता है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है तो एक दिन उसका पतन हो जाएगा, क्योंकि हर फैसिलिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर बनना सभी लोग चाहते हैं,
कि हम पूरे देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, परंतु प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लोगों की इच्छा है कि फैसिलिटी मिलती रहे, परंतु जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है। बहुत सारे नेता इस प्रकार से करते हैं आज के समय में, 5 साल के लिए वो एमएलए एमपी बन जाते हैं, उसके बाद वो जिंदगी भर उस कमाई को खाते रहते हैं, क्योंकि पार होता है कि कैसे हम इतना पैसा बचा सकें कि पूरी जिंदगी खा सकें। तो जो लोग नियंत्रित नहीं होते हैं, आज या कल जाके संसार को उनकी सच्चाई पता चल जाती है, उनका पतन हो जाता है। तो इसलिए मैच्योर लीडर जो है वो डिटैच्ड होता है, अटेंटिव होता है और सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्रोनिम है। इमैच्योर लीडर जो है वो रजस, रिएक्टिव, एज्यूमिंग, जजिंग, एंग्री, स्नैप डिसीजंस, और मैच्योर लीडर जो है वो दास होता है, डिटैच्ड, अटेंटिव एंड सेंस कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। तो ये एक गुण है लीडर का। इसके बाद तीसरा गुण आता है अवेलेबल फॉर अदर्स। लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि दूसरे के लिए समय निकाले। अगर कभी भी सबॉर्डिनेट मिलने आता है, हम बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो सबॉर्डिनेट मिलने आएगा नहीं। कभी भी वो ये सोचेगा अरे इनके पास तो मेरे लिए तो इनके पास टाइम है ही नहीं, तो मैं इनके पास जाऊं क्यों। तो ये लीडर का एक गुण है कि जब उसने किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी ली है, तो उस व्यक्ति की चीजों के लिए उसको अवेलेबल भी होना चाहिए, समय निकालना चाहिए अपने शेड्यूल में से। और चौथा गुण है लीडर का ह्यूमिलिटी, विनम्रता। सामान्य समाज में एक्चुअली विनम्रता को ठीक से नहीं माना जाता है, क्योंकि विनम्रता का ठीक कॉन्सेप्ट ही लोगों को पता नहीं है। विनम्रता का मतलब होता है, जैसे मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो भी बनाया था इससे संबंधित, विद्या विनय संपन्न, विद्या विनय न शोभते। वास्तविकता में विद्या जो है, जब किसी के पास विनय है, विनम्रता है, तभी विद्या उसके ऊपर अच्छी लगती है। और वास्तविक विद्या उसी को बोलते हैं जिससे विनय आता है। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं कि जिस पेड़ में फल होते हैं वो पेड़ झुकता है, वो जो पेड़ अच्छे गुण होते हैं वो ही झुकने की शक्ति रखते हैं। और विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। विद्या के द्वारा विनय की प्राप्ति होती है, विनय के द्वारा व्यक्ति क्वालिफाई होता है उस विद्या को जीवन में अपनाने के लिए। तो वास्तविकता में विनम्रता जो है, ह्यूमिलिटी, ये अगर कोई खाली बर्तन देखें तो अगर कोई पानी भरने का एग्जाम्पल से अगर हम देखें, जैसे किसी पात्र में केवल उतना ही पानी भरा जा सकता है जितना उस पात्र में, उस बर्तन में जगह है, उसी तरह से कोई व्यक्ति के अंदर उतना ही ज्ञान आ सकता है जितना उसके हृदय में विनम्र स्पेस के समान है। अगर कोई विद्या, कोई नॉलेज प्राप्त करने से हमें घमंड आता है, दैट मीन्स वो विद्या नहीं है, अविद्या है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग ज्यादा घमंडी होते हैं। जो एनआईटी में पढ़ता है उसको और घमंड होता है, जो आईआईटी में पढ़ता है उसको और घमंड होता है कि देखो मैं इतने बड़े कॉलेज में हूँ। और वो घमंड से लोगों को बताता भी है, देखो तुम तो छोटे मोटी जगह से हो और मैं देखो कितना बड़ा हूँ। तो इस घमंड के कारण उसकी विद्या जो है वो नष्ट हो जाती है। उस विद्या का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वास्तविक विद्या विनम्रता को जन्म देती है। तो लीडर को घमंडी नहीं होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। बिजी रहेगा अपने खुद के गुणों को देखने में। तो इसलिए लीडर के लिए बहुत होनी चाहिए, दूसरों के लिए सम्मान होना चाहिए। अगर कभी कोई लीडर के अंदर धैर्य की कमी है, पेशेंस की कमी है, तो वो क्या क्या मिस्टेक करेगा वो हम देख सकते हैं। ये स्लाइड और इसके आगे के 1-2 स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी के अंदर धैर्य की कमी है तो वो दूसरे के कॉन्ट्रीब्यूशंस को नहीं देखेगा, दूसरे लोग उसकी टीम में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसको वो कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, कभी भी प्रशंसा नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति इनसिक्योर होता है वो दूसरे को प्रशंसा करने में सोचता है कि मेरी प्रशंसा कम हो जाएगी अगर मैं दूसरे की प्रशंसा करूंगा तो मेरे, और कभी भी दूसरे व्यक्ति की मदद भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपने आप की दुनिया में इतना बिजी रहता है कि वो दूसरे के हिसाब से दुनिया को देख ही नहीं पाता है, दूसरे के हिसाब से उस सिचुएशन को नहीं देख पाता है। दूसरा, अगर हमें किसी के अंदर दया भावना नहीं है तो हम दूसरे को माफ भी नहीं कर सकते हैं। लीडरशिप में कई बार लोग मिस्टेक करते हैं और लीडर को देखना पड़ता है कि किस व्यक्ति को कब माफ करना चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर टैलेंट भी होते हैं परंतु कभी कभी वो गलती करते हैं। तो उसको तैयार रहना चाहिए कि वो लोगों को क्षमा करना भी सीखे। अगर किसी को हम क्षमा नहीं करते हैं
तो संबंध खराब हो जाता है। नॉट फॉरगिविंग इज द बेस्ट वे टू ब्रेक रिलेशनशिप्स। अगर हम किसी के साथ संबंध खराब करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका है कि हम उसको माफ करना बंद कर दें, उसकी गलतियों पे उसको माफ नहीं करें, तो धीरे धीरे फिर वो भी हमसे दूर चला जाएगा। और साथ साथ लीडर को ये पता होना चाहिए कि भगवान वास्तविकता में कंट्रोलर है। एथिस्टिक लीडरशिप जो है वो एक्चुअली यूजलेस लीडरशिप है, क्योंकि वास्तविकता में स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाता है कि वी आर नॉट ऑल इन ऑल, गॉड इज इन कंट्रोल, दिस लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल, नेक्स्ट लाइफ एग्जिस्ट। तो ये सब स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जो हैं उसको जानने से ऑटोमेटिकली मोरल कॉन्सेप्ट और वैल्यूज लोगों में डेवलप होती हैं। भगवत गीता का अंतिम श्लोक आता है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम। उसमें बताते हैं कि जहाँ पे अर्जुन है, जहाँ पे कृष्ण है, वहाँ पे चार वस्तुएं हमेशा निवास करती हैं। चार वस्तुएं कौन कौन सी निवास करती हैं जहाँ पे कृष्ण अर्जुन होते हैं? श्री, श्री का मतलब बहुत ज्यादा वैभव, बहुत ज्यादा धन दौलत। विजय मतलब जीत, विक्ट्री। भूति, भूति मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, असामान्य प्रतिभा। और नीति, नीति मतलब नैतिक सिद्धांत। तो जहां पे आध्यात्मिकता होती है वहां पे ये चार, वैभव, विजय मतलब विक्ट्री, भूति मतलब वैभव, असामान्य प्रतिभा, और नीति मतलब नैतिकता। तो लीडर को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भगवान कंट्रोल में है, केवल यही नहीं कि मुझे ही सब कुछ कंट्रोल करना है, उसको अपना पार्ट। अगर कोई व्यक्ति धैर्यशाली है तो वो जब कोई व्यक्ति उसकी बुराई देखेगा, उसका फॉल्ट बताएगा, तो वो व्यक्ति कम से कम उस फॉल्ट को सुन सकता है और रियलाइज कर सकता है कि वास्तविकता में उसकी मिस्टेक है। ज्यादातर इस संसार में लोग क्या है, फीडबैक चीज लिखा है, इसमें आप अपना फीडबैक दीजिए। तो हमारे मन में क्या इच्छा होती है कि फीडबैक में वो व्यक्ति हमारी प्रशंसा करेगा, इसलिए हम उससे फीडबैक पूछते हैं कि फीडबैक दीजिए। पर जब कोई व्यक्ति फिर फीडबैक देते समय प्रशंसा के साथ साथ हमारी गलतियां भी बताता है, क्या क्या हमने गलत किया, तो फिर हम नाराज हो जाते हैं। फिर बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा आपने कैसे हमें, आपने जो देखा एक्चुअली वो मेरी गलती नहीं है, आप ही नहीं पहचान पाए। इस प्रकार से हम बोलते हैं कि मैं तो इतना टैलेंटेड हूं, आप पहचान ही नहीं पाए कि मैंने सही बोला, आप मेरी गलती देख रहे हैं। तो संसार में लोग अपनी, इसलिए फीडबैक देना बहुत कठिन होता है। फीडबैक देने से लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए फीडबैक देने की बजाय हम उनको मुंह में खिलाते हैं, फीड फ्रेंच करते हैं। सामने से उनको मिठाई खिलाते रहो तो लोग खुश रहते हैं, पर फीडबैक देने से लोग नाराज हो जाते हैं। परंतु लीडर के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो हमारी गलतियां बताते हैं हमारे अच्छे के लिए बताते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा हमारी चीज से डिसएग्री करता है, हम जो बताएंगे उससे अलग बताएंगे, तो उसको हमें इस तरह से लेना चाहिए कि उसके पास भी एक अच्छा आइडिया है, उस आइडिया को भी डेवलप किया जा सकता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति हमसे अलग अलग ओपिनियन रखता है तो हम उसको किस प्रकार से लेते हैं? हम इस प्रकार से लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरे सरेंडर्ड नहीं है और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। उस तरह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से होता है, हर व्यक्ति का टैलेंट भी अलग होता है। वो व्यक्ति भी अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है अगर वो इस प्रकार से करेगा और सोचेगा। तो ये हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए कि जब हमारे लिए कोई गलती ढूंढता है या फॉल्ट निकालता है तो हम उसको ध्यान से सुने। इनफैक्ट एक जगह पे लिखा भी गया है इस प्रकार से, निंदक नियरे राखिए आंगन कोठी छबाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। ऐसा व्यक्ति जो हमारी निंदा करता है उसको अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को साफ कर देगा, हमारे अंदर जो गलतियां हैं वो साफ कर देगा। इतनी बार वो हमारी निंदा करेगा कि निंदा सुन सुन के हमें पता हम कर सकते हैं। इसके विपरीत ऐसे लोगों को अपने पास रखना जो हमेशा हमारी प्रशंसा करते हैं, वो डेंजरस है। उसको बोला जाता है यस मैन। ऐसे लोग जो हमेशा हमारी बात के लिए यस बोलेंगे, उनके साथ रहना बहुत डेंजरस है, क्योंकि हम कोई गलती भी करेंगे तब भी वो बोलेंगे नहीं नहीं ये तो गलती नहीं है, ये तो लोग गलत सोच रहे हैं, आप तो हमेशा सही करते हैं। तो जो हमेशा हमारी प्रशंसाएं दूर नहीं होंगी। परंतु अगर
कोई हमारी निंदा करता है, उसकी बात को हम सुनेंगे तो हम अपने आप में बहुत तेजी से विकास कर सकते हैं। तो लीडर को तैयार होना चाहिए उसके फॉल्ट्स को सुन के उसके ऊपर कार्य करने के लिए। इसके बाद आता है डेंजर्स फॉर द बैड लीडर। अगर कोई लीडर अच्छा नहीं है तो ग्रेटेस्ट डेंजर फॉर एनी लीडर इज टू बिकम ऑटोक्रेटिक, नॉट हियरिंग अदर्स, एब्सोल्युटली डूइंग थिंग्स व्हाट ही वांट्स। डेंजर है लीडर के लिए ये सोचना कि मुझे दूसरे के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, मैं जो बोलूंगा सही बोलूंगा और दूसरे लोग केवल मेरी सुनेंगे वो करूंगा। अगर किसी के अंदर ऐसी भावना अंदर चली गई है, दैट मीन्स वो लीडर अपने लिए भी डैमेज करेगा, आगे जाके दूसरे को भी डैमेज करेगा, क्योंकि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कभी भी अच्छी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में केवल हमारे अंदर ही टैलेंट है, हमें अब नहीं है, संसार में बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं, केवल हो सकता है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला हो जैसा प्रकार से हमें अपॉर्चुनिटी मिला है। तो इस प्रकार से सोचना बहुत गलत है कि हम ही बेस्ट हैं, आई एम द बेस्ट एवरीबॉडी, तो हम दूसरे के टैलेंट को यूज नहीं कर पाते हैं, हम दूसरे के जो अच्छे इनोवेशन हैं उनको भी गंवा देते हैं। कई बार कॉर्पोरेट में ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं कि किसी नए इंजीनियर ने कोई मॉडल बनाया, उसके मालिक ने उसको नहीं सुना, उस इंजीनियर को बाहर निकाल दिया, फिर उस इंजीनियर ने उसी मॉडल को उपयोग करके नई कंपनी बनाई और वो कंपनी सक्सेसफुल हो गई। तो इसलिए दूसरे को नहीं सुनना बहुत डेंजरस है लीडर के लिए, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बहुत डेंजरस है। और दूसरा डेंजर है लीडरशिप का टेकिंग अनड्यू एडवांटेजेस ऑफ बेनिफिट्स। कोई भी लीडरशिप पोजीशन जब हम लेते हैं तो उसके साथ साथ हमें कुछ कुछ फैसिलिटी मिलती है, हम ऑलरेडी इसको एक बार डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो उस फैसिलिटी को हमें उपयोग करना, गलत तरीके से उपयोग करना ठीक नहीं है उस लीडर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने हमें कार दी है, हम किसी कंपनी में काम करते हैं और हमें कार दी गई है कंपनी की तरफ से, तो वो कार कंपनी ने किस लिए हमें दी होगी? ऑब्वियसली वो कार हमें दी गई है जिससे हम कंपनी में जाएं और कंपनी का कार्य करें, कंपनी का काम करें। परंतु अगर कोई व्यक्ति उस कार को लेके रखता है, महीने 2 महीने के लिए जाके पिकनिक मनाने के लिए जाता है और कार को कभी कंपनी में नहीं ले जाता है, केवल अपने काम के लिए यूज करता है, तो कंपनी कुछ समय बाद उस कार को वापस ले लेगी। तो इसी तरह से कोई भी लीडर को जो फैसिलिटी मिलती है वो उस काम करने के लिए मिलती है, उस सेवा के लिए उसको फैसिलिटी मिलती है। अगर उस सेवा का वो एडवांटेज बेनिफिट लेना चाहेगा, हाँ, मतलब गलत तरीके से फायदा उठाना चाहेगा, तो एडवांटेज खत्म हो जाएगी। इसके बाद तीसरा लीडरशिप के लिए डेंजर है कि लीडर को लोगों के लिए अवेलेबल होना चाहिए, लोगों की बात सुनने के लिए उसको तैयार होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। कि अगर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम नहीं कर पाते हैं अच्छे से, हमें हो सकता है वो काम नहीं करना हो, तो हम फिर क्या बोलते हैं, अपने जूनियर को बुला के बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम ये जिम्मेदारी निभाओ। अंदर से हम ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इसको दे देता हूं, अगर ये कर लेगा तो अच्छा है, नहीं कर पाएगा तो इसके ऊपर ब्लेम करूंगा कि ये भी नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। जो काम हम नहीं कर पा रहे उसको जूनियर को देने की क्या आवश्यकता है, हमें सीख के खुद करना चाहिए। जैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो आगे आएगा भी, शायद हो सकता है वहां तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि ये पीपीटी बड़ा भी है। जैसे विंग्स ऑफ फायर बुक में एपीजे अब्दुल कलाम इस प्रकार से लिखते हैं, उन्होंने एक बार एक रॉकेट परीक्षण किया था, तो फेल हो गया था वो रॉकेट, और एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने सीनियर से पूछे बिना उसको परीक्षण कर दिया था, जबकि उसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स थी। तो जब वो रॉकेट फेल हो गया तो सारे मीडिया के लोग देखने के लिए आए कि इतना करोड़ों रुपए बर्बाद हो गया, इस प्रकार से क्यों हुआ। तो अब्दुल कलाम के जो सीनियर थे, जो उनके बॉस थे, उन्होंने बोला कि आप सब लोग अंदर आओ और मैं मीडिया के पास जाता हूँ। और मीडिया के पास जाके उन्होंने फिर बोला मीडिया से कि जो भी गलती हुई है वो मेरी गलती है और हम इसको सुधारेंगे, फिर से इसका प्रयास करेंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम बहुत इम्प्रेस हुए, क्योंकि वास्तविकता में उस बॉस की गलती नहीं थी, गलती उनकी थी, कलाम साहब की गलती थी, और बॉस ने जिम्मेदारी ली। जब कोई गलती हुई, फेल हुआ, तो उन्होंने जिम्मेदारी ली और कलाम साहब को बचा लिया। और 1 साल बाद फिर से रॉकेट को, फिर कुछ साल बाद उसको फिर से परीक्षण किया गया, इस बार वो सफल हो गया। तो फिर से जब मीडिया के लोग आते हैं तो बॉस बोलते हैं कि अभी मैं यहीं रहता हूं, तुम लोग जाके मीडिया से बात करो। और सभी लोग फिर जाके मीडिया को बताए कि इस प्रकार से कि हुआ, इस प्रकार से हुआ। तो कलाम जी को बहुत अच्छा लगा ये,
कि जब कोई विफलता आई और जब कोई सफलता आई तो वो उसने अपने फॉलोअर्स को आगे भेजा। जैसे कभी कोई गलती होता है तो लीडर को खुद आगे आगे खड़े होके सड़े हुए टमाटर खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोग टमाटर फेंकते हैं अगर कोई गलती होती है तो, और अगर कुछ अच्छा होता है तो फिर टीम के साथ शेयर करना चाहिए कि सब लोगों के कार्य करने से ये कार्य संपन्न हुआ। और एक और पॉइंट है इसमें, मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट। लोगों को हम जो बोलते हैं उससे वो नहीं सीखते हैं, वो हमें देख के सीखते हैं। हम जो कार्य करते हैं उसको देख के सीखते हैं। उसका एक फॉर्मूला भी है, पीपल्स डोंट डू व्हाट वी डू। हम जो करते हैं उसको देख के लोग करते हैं, हम जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति लिविंग एग्जाम्पल देखना चाहता है। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति खुद काम नहीं करता है तो दूसरा व्यक्ति फिर उसको सीरियसली नहीं लेता है। अगर कोई अच्छा लीडर बनना चाहता है, उसको क्या क्या उसके लिए सजेशन है, उसको क्या क्या करना चाहिए अच्छी लीडर को है। बेस्ट वे टू रन द ऑर्गेनाइजेशन इज टू क्रिएट सक्सेसर। जब तक कोई लीडर है लीडरशिप पोजीशन में, तब तक उसको प्रयास करना चाहिए कि उसके जूनियर्स को ट्रेन करके वो, क्योंकि कोई भी इस संसार में हमेशा नहीं रहता। हर व्यक्ति का एक समय आता है जब वो चला जाता है। यह भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने रहते रहते लोगों को तैयार करना चाहिए, जिससे हमारी उसमें ये चीज है, लोग गलती करते हैं, उस गलती का आरोप हमारे ऊपर आता है, परंतु उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता है, क्योंकि वो लोग उसको हैंडल करना पड़ेगा। परंतु अगर वो एक बार सक्सेसर क्रिएट कर देगा, लोगों को ट्रेन कर देगा, तो उसके बाद फिर वो लोग पूरा सिस्टम संभाल सकते हैं। तो आइडियल लीडरशिप होता है कि अगर उस लीडर को उस जगह से हटा भी दिया जाए रातों रात, तब भी वो सिस्टम कभी भी कोलैप्स नहीं होगा, हमेशा वो सिस्टम कार्य करता रहेगा। और नेक्स्ट गुड फील्ड है, विच एवर फील्ड द लीडर डजंट फोकस, द फील्ड विल ruin एंड विल बिकम वीक। तो लीडर को मल्टीफेसेटेड होना चाहिए, उसको अपने चरित्र पे भी कार्य करना चाहिए, अपने स्किल्स पे भी कार्य करना चाहिए, अपने विजन पे भी कार्य करना चाहिए। उसके साथ नहीं करेगा, फोकस नहीं करेगा, वो फील्ड वीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, लीडर शुड फील फॉर हिज फॉलोअर्स, देन फॉलोअर्स विल डेवलप ट्रस्ट इन हिम। वास्तविकता में हम अगर लोगों की केयर करेंगे, तब लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे और ट्रस्ट करेंगे। जैसे कुछ जैसे घर में हम देखते हैं, बड़े भाई होते हैं या चाचा जी होते हैं, वो लोग आके हमसे पूछते हैं कि आपका हेल्थ कैसा है, खाने में ठीक चल रहा है कि नहीं, और घर में बाकी सब लोग ठीक हैं, सबसे आपका संबंध ठीक चल रहा है कि नहीं। क्योंकि मनुष्य एक सोशल प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल। व्यक्ति के अलग अलग तरीके से लोगों से संबंध होते हैं, व्यवहार होता है, संबंध बहुत सुपरफिशियल है। अगर हम उसके हृदय में एंटर करना चाहते हैं तो हमें प्रोफेशनल लेवल से पर्सनल लेवल तक जाना होगा। तो लीडर को भी फील करना होगा कि उसके फॉलोअर्स की क्या आवश्यकता हो। तो 3-4 लेबर थे, ट्रक के अंदर रखना चाह रहे थे, और ये जो मैनेजर था, ये ऊपर से खड़ा होकर ये मैनेजर चिल्ला रहा था, करो करो करो। तो
जॉर्ज वॉशिंगटन ने देखा, उसने सोचा कि ये मैनेजर अगर जाके काम उनकी मदद करेगा तो वजन उठाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने उससे पूछा मैनेजर से कि मैं उनकी मदद करूं क्या। तो उसने बोला ठीक है। और 5 लोगों ने मिलके बाकी लेबर के कि अच्छा आप तो यहाँ खड़े थे, आप चाहते तो उनकी मदद करते तो उनका काम हो जाता। तो मैनेजर ने बोला नहीं नहीं, मैं क्यों काम करूंगा, मैं तो उनका सीनियर हूं, मैं तो उनका लीडर हूं, मैं क्यों काम करूंगा, और तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। इस तरह से उसने बोला। तब फिर जॉर्ज वाशिंगटन ने बोला कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूँ, अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ। तब उस व्यक्ति को समझ में आया कि उसने किससे लेबर काम कराया। तो जॉर्ज वाशिंगटन यही बता रहे थे कि अगर हम लीडर अपने फॉलोअर्स के लिए फील करेंगे, उनके साथ ग्राउंड में खड़े होकर कार्य करेंगे, तब फिर लोगों का विश्वास हमारे ऊपर आता है। और एक और सजेशन अच्छा है ये कि मैनेजमेंट शुड बी ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब कुछ कुछ वस्तुएं हैं जिसमें लीडर को डिसीजन लेने की क्षमता है, कुछ कुछ वस्तुएं हैं जिसमें वो सभी लोगों के सजेशन भी ले सकता है, और उसको लोगों जो लोग इन्वॉल्व हैं ग्राउंड पे उनसे भी डिसीजन लेने के पहले पूछना चाहिए, और नए आइडियाज के लिए होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति ग्राउंड में कार्य कर रहा है, सेल्समैन है या मार्केटिंग देख रहा है, और जो चेयरमैन है वो तो ऑफिस में बैठा हुआ है,